So today's topic is selection sort in data structure. So in previous class, we have discussed bubble sort, merge sort, insertion sort, quick sort, and today we discuss our topics in selection sort. Selection sort is the simplest way to sorting the array in data structure or in any other sorting process. Okay, the selection sort algorithm sorts an array by repeatedly finding the minimum element considering ascending order and from unsorted. Okay, so today am I audible? Aditya Kumar? Yes, sir. Okay. Uh, Today's topic is selection sort. Okay, in previous class we discussed about bubble sort, quick sort, insertion sort, or today we discuss the selection sort process. Selection sort process is very simple and easiest way to sorting the unsorted array. There is a number of student is present, number 2, and previous class कौन सा हो रहा था? ये सर आप एल्गोरिथम बता रहे थे ये मर्ज सॉर्ट का। ना मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिथम बता रहा हूँ, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। 10:40 के पहले कौन सा क्लास हो रहा था? स्टूडेंट इतना कम है इसलिए बोल रहा हूँ। सर कोई भी क्लास नहीं हुआ। इसलिए सब आने में लेट कर रहे हैं। मर्ज सॉर्ट तो मैंने बोला था, मर्ज सॉर्ट का प्रोग्रामिंग मैंने तुम लोगों को करने के लिए बोला था। वो मैं आज जब 350 से क्लास लूंगा तब मैं प्रोग्रामिंग कराऊंगा। मर्ज सॉर्ट का तुम लोग बोलोगे कैसे प्रोग्रामिंग किए हो, और सिलेक्शन सॉर्ट का जो प्रोग्राम है वो मैं बोल दूंगा। ठीक है, आज 2 क्लास होगा। एक कल का क्लास है, कल एक मीटिंग था इसलिए क्लास ऑफ था, तो वो मैं सुबह में ले रहा हूँ। और सेकेंड जो क्लास होगा वो प्रोग्रामिंग का होगा। मैं वहां पर मार्क्स शॉट का जो प्रोग्राम है वो तुम लोग मेरे को बोलोगे, और मैं सिलेक्शन शॉट का जो प्रोग्राम है वो मैं बताऊंगा। So today's topic is selection sort. So what is selection sort? Selection sort algorithm is an array repeatedly finding the minimum element considering ascending order from unsorted part and putting it at the beginning. Okay, so selection sorts algorithm क्या है? When we sorted an array, we rearrange the data in ascending order, and repeatedly we rearrange every data to ascending order, and we create a sorted array. Okay, so the selection sort algorithm sorts an array by repeatedly finding the minimum element considering ascending order from unsorted part and putting it at the beginning of the algorithm. Maintain 2 subarray in given an array, and the subarray which is already sorted and remaining subarray which is unsorted. So now we share this example. Example is visible your screen for I2 1 to n-1 सिलेक्शन सॉर्ट का जो एग्जांपल में बोल रहा हूँ वो विजिबल है तुम्हारे स्क्रीन में? Yes, sir. ओके, सो मैं एक एग्जांपल में ये बाद में बोलूंगा, तो पहले मैं उसका जो डेफिनेशन है वो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं एक एग्जांपल देके मैं बोलूंगा। तो सिलेक्शन सॉर्ट का प्रोसेस क्या है, मैं एक सिंपल वे में एक बार बोल रहा हूँ। देखो, ये समझो यहाँ पर 6 एरे है। देयर इज द 6 नंबर ऑफ एरे प्रेजेंट एंड दिस एरे इज ए अनसॉर्टेड एरे।
Okay, and the number one position is 40, number two is 20, then 60, 10, 50, and 30. And in this selection process, we start the sorted method using only this array. Okay, and here we compare the first element to the others element and one by one sorted the array using selection method. Okay, तो इसमें क्या होगा, पहले हम 40 को सिलेक्ट कर लिए, 40 को हम लोग कंपैरिजन करेंगे 20 से, फिर 20 60 से, 10 से, 50 से, 40 से। इसमें से क्या होगा, अगर 20 इससे कम हो गया, फिर ये दोनों के बीच में एक होगा, फिर 40 के बीच में से, 10 के बीच में, फिर 50 के बीच में, फिर 30 के बीच में, लास्ट में क्या होगा, वो स्वाइप हो जाएगा। ठीक है, तो इन सिलेक्शन मेथड वी विल डिस्कस द सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम and the working procedure of selection sort is also simple. This article will be very helpful and interesting to understand. In selection sort, important to discuss these topics to using the selection method, and the smallest value among the unsorted element of the array is selected in every pass and inserted to its appropriate position into the array. Okay, it is also the simplest algorithm. सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा, सबसे सिंपली स्मॉलेस्ट जो एलिमेंट है, वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या होगा, पहले वाला जो एलिमेंट है उसके साथ वो रिप्लेस होगा। ठीक है, हम लोग जब स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट हम लोग कैसे कहां से करेंगे, समझो ये ए आई है और ए एन तक है एरे, हम लोग ए अगर आई होगा, आई से हम लोग क्या करेंगे, ए स्टार्ट करेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, अगर स्मॉलेस्ट एलिमेंट 20 होता, 20 हम लोग सर्च कर लेंगे, फिर क्या होगा, इस 20 एंड 40 के बीच में क्या होगा, स्वाइप हो जाएगा। ठीक है, स्वाइप एक ही बार होगा, हम लोग इसमें कंपैरिजन हर एक एलिमेंट से होगा। We comparison the whole element to the first element. Okay, and we replace or swipe those element who is the smallest in this array. Okay, so in selection sort, the smallest value among the unsorted element of the array is selected in every pass and inserted to its appropriate position into the array. Okay, it is also the simplest algorithm. It is an in-place compromise sorting algorithm. In this algorithm, the array is divided into two parts. First is sorted part and another one is unsorted part. Initially, the sorted part of the array is empty. मैं यहाँ पर क्या क्यों बोल रहा हूं कि ये जो एरे है ये दो पार्ट में डिवाइडेड होगा। दो पार्ट में कैसे डिवाइडेड होगा, देखो ये क्या है, ये एक एरे है 6 डिजिट का एरे, एलिमेंट का एरे। तो मैं जब फर्स्ट पास कंप्लीट करूंगा, समझो 40 से 20 कॉम्प्रोमाइज कंपैरिजन करेंगे, फिर क्या करेंगे 60 कंपैरिजन करेंगे, फिर 10 करेंगे, फिर 50, फिर 30। तो कंपैरिजन करने के टाइम मेरे को क्या मालूम हो जाएगा, 10 इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ दिस एरे। सो 10 क्या होगा, 10 इज रिप्लेस द एलिमेंट ऑफ 40। फिर क्या होगा, देखो 10 तो इस तरीके से 10 पहले आ गया, फिर 20 तो वही प्लेस में है, इसलिए 20 तो नहीं होगा। देखो जब 10 और 20 यहाँ पर सॉर्टेड हो रहा है, तो क्या होगा, जो स्टार्टिंग पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट 60 में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये 10 और 20 एक पार्ट होगा और 60, 50, 40, 30 और एक पार्ट होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं ये दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाएगा। लेकिन इन द बिगिनिंग और इनिशियल स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस, the first part is empty because in this process we count the starting part is 40 and this is the one array. So here we did not
separated this array in the beginning. Okay, so मैं और एक बार बोल रहा हूँ, the array is divided into two parts. First part is sorted part and another one is unsorted part. Initially the sorted part of the array is empty and unsorted part is given array. Sorted part is placed at the left and while the unsorted part is placed in the right position. Okay, clear? And the first smallest element is selected from the unsorted array and placed at the first position. After the second smallest element is selected and placed the second position, the process continue until the array is entirely sorted. तो यहाँ पर क्या होगा देखो, in the initial position the first number we denote, the first number of the element is the first element, and then we start the process, and when the first element is sorted or the second element is sorted, the first and second element is the part 1, this part is sorted part, and the other remaining part which is located in the right position is unsorted part. Okay, and now we give the example. समझो यही एक एग्जाम्पल है, मैं इस एग्जाम्पल को एल्गोरिथम में बता रहा हूं, ठीक है. द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्किंग ऑफ द सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम, लेट्स टेक एन अनसॉर्टेड एरे एंड दिस इज द अनसॉर्टेड एरे एंड इट विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड द सिलेक्शन सॉर्ट भाया एग्जाम्पल. ओके, नाउ फॉर द फर्स्ट पोजिशन ऑफ द सॉर्टेड एरे, द एंटायर एरे टू बी स्कैन्ड sequentially. The first position of the array is 40 and then it scanned in 1 by 1. Okay, at the present 40 is sorted at the first position, and after searching the entire array, okay, it is found that 10 is the smallest value. Okay, in this array 40 is the first position and we consider it is a sorted array element, and then we searching the entire array and it is found that 10 is the smallest value. So 40 and 10 is swiped. After the first iteration 10 will appear at the first position in the sorted array. समझ में आ रहा है? हेलो, बोलो. थोड़ा थोड़ा आ रहा है. यस सर. थोड़ा थोड़ा क्यों आ रहा है? देखो, एक सिंपल सा प्रोसेस है, मैं इस प्रोसेस को पहले बोल रहा हूं फिर मैं एल्गोरिथम में बोलूंगा. एक एल्गोरिथम है, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है देखो, सिलेक्शन प्रोसेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को ही हम लोग सॉर्टेड कर रहे हैं. पहले हम लोग जब इंसर्शन सॉर्ट, मार्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ये सब सॉर्ट जब कर रहे थे तो दो पार्ट कर रहे थे और बाहर से कोई एरे हम लोग लेते थे, ऐसे कर रहे थे. लेकिन इन सिलेक्शन प्रोसेस बाहर से कोई भी कुछ भी नहीं ऐड होगा, कोई भी एलिमेंट नहीं ऐड होगा. ठीक है, इसमें जो 6 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट के बीच में ही क्या होगा, स्वाइप होगा और सर्चिंग प्रोसेस होगा. तो इन द फर्स्ट पोजीशन we consider 40 is the first position of this entire array. Okay, and then we start searching. हम लोग क्या सर्च करेंगे, 40 से कम कौन कौन एरे है, एंड सबसे स्मॉलेस्ट एरे जो होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, 40 से स्वाइप कर देंगे. ठीक है, क्लियर? ये तो यस सर. ये तो समझ में आने का कोई बात नहीं है. मैं सिंपल वे में बोल रहा हूँ. ये जो 6 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट के पहला जो एलिमेंट होगा उसको हम लोग पहले फर्स्ट एलिमेंट डिनोट करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, 40 के साथ सबको हम लोग क्या करेंगे, सर्च करेंगे 40 से सबसे कम कौन सा एलिमेंट है. ओके, तो व्हेन वी स्टार्टिंग द सर्चिंग प्रोसेस वी फाउंड दैट 10 is the smallest number of this array.
then we swipe 40 and 10. ओके, और जो नंबर है वो वही प्लेस में रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा, इस जो 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इस एलिमेंट से सबसे कम 40 से कम क्या है, 40 से कम क्या है, 10 है, तो 10 को हम लोग क्या करेंगे, 40 से स्वाइप कर देंगे। ठीक है, सो 10 and 40 are swiped, and after the first iteration 10 will appear at the first position in the sorted array. 10 appear हो गया, and in this position देखो 10 तो sorted हो गया, तो क्या होगा, ये जो नंबर है 20, ये क्या होगा, ये सेकेंड पोजीशन में आ जाएगा, और 40 तो 10 के प्लेस में आ जाएगा। फॉर द सेकेंड पोजीशन वेयर 29 sorry, for the second position 20 is sorted, 20 is the second position, okay जी, इसलिए क्योंकि 10 तो sorted हो गया, so we again consequently scan the rest of the item in unsorted array. okay, so 10 हो गया, फिर 20, 60, 40, 50, 30, so हम लोग क्या करेंगे, 20 को, ये तो एक पोजीशन में हो गया, आई यहाँ पर मूव हो जाएगा, फिर 20 से हम लोग क्या करेंगे, इसको सर्चिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो 20 से जब हम लोग सर्च स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, व्हेन 10 तो पहले नंबर है, फिर 20 से हम लोग जब स्टार्ट करेंगे, तो 20 से स्टार्ट करने के बाद क्या होगा, आफ्टर स्कैनिंग, ठीक है, वी अगेन स्टार्ट scanning. After scanning we find that there is no number is smallest than 20. okay, क्योंकि देखो 60 20 से बड़ा है, 40 यहाँ पर आ जाएगा, 40 भी 20 से बड़ा है, 50 भी 20 से बड़ा है, और 30 भी 20 से बड़ा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, there is a nothing number of is present is the smallest of 20. okay, so here there is no swipe operation is performed, and we find 10 and 20, this is the two number, and this number is sorted, and this number position is the left corner. okay, and in the left side the array is sorted, this is the part 1, and another right side, this is the part 2 side, and this array is unsorted. Now we start the same procedure. okay, and now the I position is moved to 60. okay, क्योंकि 10 और 20 तो यहाँ पर हो गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ पर, और नो सर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट when we start the searching process with the beginning of number 60, then we again we searching the same number, and we find here 30 is the smallest number. okay, so we swipe 30 and 60. okay, यहाँ पर क्या है, देखो 10 20 हो गया, यहाँ पर 60 है, यहाँ पर क्या है, 40 है, 50 है, और 30 है, और आई यहाँ पर मूव हो जाएगा। तो आई मूव होने के बाद क्या होगा, आई जो नंबर है, ये तीनों के साथ कंपैरिजन हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 30 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, सो क्या होगा, 60 के साथ 30 क्या हो जाएगा, स्वाइप हो जाएगा। ठीक है, and this is the third iteration, and here after the third iteration we find the array is equal part, one is unsorted part and one is sorted part. Unsorted part is 10 20 30. okay, and this is the left position of the array, and the unsorted part is 40 50 and 60. ओके, फिर ऐसे हम लोग क्या करेंगे, फिर 40 से हम लोग कंपैरिजन करेंगे, एंड 40 इज द स्मॉलेस्ट इन comparison of 50 and 60, then 40 is the same position,
there is no need to swipe, and then 50 and 60 we use the same process. Okay, so in this process we sorted the array. In this process we sorted the array, and here we did not एडजस्ट, और वी नीड यहाँ पर क्या है, हम लोगों का कोई भी बाहर से कोई नया एलिमेंट ऐड करने का और कोई भी इंसर्ट करने का जरूरत नहीं है। वो जो 6 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट को हम लोग लेके यहाँ पर हम लोग सॉर्टिंग प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे नाउ वी डिस्कस द एल्गोरिथम ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट। एंड हियर देखो, फॉर i 1 to n-1, यहाँ पर जो सर्चिंग प्रोसेस हम लोग कर रहे थे, here we start the searching process, we consider 1 to n-1, n-1, okay। यहाँ पर हम लोग q 1 से n-1 तक हम लोग सर्चिंग करेंगे, ये देखो समझ लो, ठीक है। देखो यहाँ पर तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग सर्चिंग कितना देर तक करेंगे, 50 तक, मतलब नंबर 5 तक। क्योंकि देखो अगर हम लोग 5 नंबर है, 5 नंबर्स, अगर हम लोग ये 5 नंबर्स को सॉर्टेड कर लेंगे तो क्या होगा, जो नंबर वहां पर एक्स्ट्रा होगा वो तो ऑलरेडी सॉर्टेड हो गया ना। समझो 6 स्टूडेंट क्लास में है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एज के हिसाब से हम लोग वो सॉर्टेड कर रहे हैं। अगर उसमें से 5 स्टूडेंट को हम लोग सॉर्टेड कर लेंगे तो 6 स्टूडेंट जो रहेगा उसको तो सॉर्ट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी तो सॉर्टेड हो गया है। क्योंकि अगर 5 तो सॉर्टेड हो गया तो 6 को हम लोग उसको सॉर्टेड नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। इसलिए यहाँ पर सर्चिंग क्या होगा, i 1 से n-1 तक होगा, ठीक है। अब क्या हम लोग क्या कर रहे हैं, मिनिमम जे क्या है, i है। समझो ये जो i है वो मिनिमम नंबर हम लोग वही से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 40 को हम लोग क्या करेंगे, i से डिनोट कर देंगे, एंड मिनिमम x इज इक्वल टू ai, ये जो नंबर है यही से हम लोग कंपैरिजन जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। और j का वैल्यू क्या होगा, j का वैल्यू हम लोग किसके साथ कंपैरिजन करेंगे, j का कंपैरिजन करेंगे i+1 to n, मतलब 20 से जो j का जो वैल्यू है, जो मिनिमम पहले था, वो j का जो वैल्यू है वो हम लोग क्या करेंगे, 20 से n तक हम लोग इस 40 नंबर को कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग सर्चिंग करेंगे i1 से n-1 तक, और जब कंपैरिजन हम लोग करेंगे तो तब हम लोग क्या किसके साथ स्टार्ट करेंगे, हम लोग j, समझो j जो कंपैरिजन करेंगे वो j नंबर है, j i+1। अगर a i हो गया तो i+1 मतलब 20 से n तक, यहाँ पर n-1 था, लेकिन जब कंपैरिजन करेंगे तब n तक हम लोग करेंगे, क्योंकि लास्ट जो नंबर है उसके साथ भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो नंबर बड़ा है या छोटा है उसको देखना पड़ेगा। फिर क्या होगा, इसमें एक लूप स्टार्ट होगा। लूप कुछ भी टफ नहीं है। लूप में क्या आएगा, मैं यहाँ पर क्या बोल रहा था, देखो अगर हम लोग कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, 40 के साथ 20, 60, 10, 50, 30, और उसमें से जो स्मॉलेस्ट है उसको हम लोग क्या करेंगे, स्वाइप करेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है एज लेस देन मिनिमम x देन, ओके। सो क्या है, जो एकदम स्मॉलेस्ट है उसके हिसाब से इसमें कंपैरिजन होगा, और मिनिमम j डिनोट करेंगे j को, और मिनिमम x क्या होगा, aj आ जाएगा, ठीक है, इस पोजीशन पे। तो इसमें जो है वो जो 40 पोजीशन होगा, जिसको हम लोग i से डिनोट कर रहे हैं, उसके साथ j का कंपैरिजन होगा, और जो स्मॉलेस्ट होगा उस स्मॉलेस्ट को हम लोग क्या करेंगे, स्वाइप कर देंगे। फिर यहाँ पर है स्वाइप प्रोसेस है, फॉर i 1 से n-1 तक होगा, मिनिमम i है, फिर j i+1 to n तक
if listed j less than least minimum, then minimum is equal to j and if or and for. Okay. सर हाँ बोलो। सर हमको n और n-1 का कंसेप्ट समझ में नहीं आया। n तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना। हाँ n-1 हम लोग क्या बोल रहे हैं कि n अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होगा तो हम लोग n-1 तक सर्च करेंगे। माने n मतलब n-1 तक हम लोग अगर सर्च कर लेंगे मतलब सर्च नहीं, सॉरी, उसका पोजीशन जो है n-1 तक अगर हम लोग सॉर्टेड कर लेंगे तो n को सॉर्टेड करने का जरूरत नहीं। सर्चिंग हम लोग n तक करेंगे। सर्चिंग हम लोग क्या करेंगे, i+1 से स्टार्ट करके n तक हम लोग सर्चिंग करेंगे, लेकिन हम लोग सॉर्टेड करेंगे n-1 तक। क्योंकि देखो अगर तुम्हारे पास 6 नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पर नंबर 5 एलिमेंट अगर सॉर्टेड कर लोगे तो 6 तो यूं ही सॉर्टेड हो जाएगा, क्योंकि उसको तो और सॉर्टेड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए वहां पर मैंने बोला n-1 और सर्चिंग में मैंने बोला, क्योंकि देखो पहले तो मैं 40 नंबर तो मैं लिया यहाँ पर 40 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट जब हम करेंगे तो उसके बाद जो नंबर है उसके साथ तो हम कंपैरिजन करेंगे ना, इसलिए यहाँ पर i+1 से स्टार्ट होके n तक हम लोग कंपैरिजन करेंगे। ओके, और उसमें से जो मिनिमम नंबर होगा, मिनिमम जो है देखो मिनिमम x क्या होगा, ai पे आ जाएगा और ai जो है वो मिनिमम j में आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर स्वाइप हो जाएगा। वो स्वाइप होने के बाद हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, फिर देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिलेक्शन सॉर्ट में सेम है जो इंसर्शन सॉर्ट में था। ठीक है, यहाँ पर देखो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट, बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी कब होगा, इट ऑकर्स व्हेन देयर इज नो सॉर्टिंग रिक्वायर्ड। बेस्ट केस समझो देयर इज अ 6 नंबर ऑफ एरे and this number is 10 20 30 40 50 60। okay, and this is the ascending order of the number, and when this number is sorted in ascending order there is no sorting required. It best case complexity is occur when there is no sorting required and the array is already sorted. The best case time complexity of the selection is big of n square। okay, मैं बाद में बोल रहा हूँ, पहले बेस्ट एवरेज और वर्स्ट केस क्या है वो मैं बोल रहा हूँ। और एवरेज केस में क्या है, इट ऑकर्स व्हेन द array element are in jumbled order, there is not properly ascending and not properly descending order। मतलब कुछ एलिमेंट क्या होगा सॉर्टिंग टाइप पे होगा और कुछ एलिमेंट क्या होगा और सॉर्टेड में नहीं होगा, तब क्या होगा, एवरेज केस वहां पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इन एवरेज केस देयर इज आल्सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ n स्क्वायर, एंड वर्स्ट केस में क्या होगा, इट्स ऑकर्स। देखो ये जो सिलेक्शन सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम है, लेकिन जो स्वाइप है उस स्वाइप में चेंज होगा, क्योंकि अगर बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी तो वहां तो असेंडिंग ऑर्डर में ही है, तो उसमें तो एरे को सॉर्टेड करने की जरूरत नहीं है, तो उसमें क्या होगा, स्वाइप करने का कोई भी जरूरत नहीं है। सर हाँ बोलो। सर सिलेक्शन शॉट का बेस्ट केस तो बिग ऑफ एन होगा ना, क्योंकि अगर मान लीजिए कि मेरा सारा एरे सॉर्टेड है तो हम उसको हर एक बार एक ही बार उसको ट्रांसवर्स करके फिर छोड़ देंगे, तो एन स्क्वायर कैसे हो गया यहाँ पे। एन स्क्वायर यहाँ पर इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर देखो समझो इन बेस्ट केस हम लोग क्या करेंगे, वो तो सॉर्टेड है लेकिन हम लोग वहां पर क्या करेंगे, कंपैरिजन हम लोग करेंगे एक के साथ और एक का।
तो उसमें क्या है, उसमें पहले n-1 आएगा, जो हम लोग जब जो सर्चिंग करेंगे, सर्चिंग क्या आएगा n-1, फिर एक तो कंप्लीट हो जाएगा, फिर क्या आएगा n-2, फिर 2 कंप्लीट होने के बाद n-3, फिर n-4, इस तरीके से आएगा। तो उसका जो ऐड होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या होगा n इंटू n-1/2, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिग ऑफ n स्क्वायर हम उसको लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया? वो कैसे होगा देखो, यहाँ पर मैंने है, देखो बेस्ट केस अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, बेस्ट केस में क्या है 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो पहले तो ये 10 की पोजीशन पे है, वो तो जरूरत नहीं है। फिर क्या होगा, जो 20 है, 20 के टाइम पे एक कम एक लगे, सॉरी S5 है। तो देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60 जब रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, पहले n-1 तक हम लोग सर्चिंग करेंगे, फिर n-2 तक सर्चिंग करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे n-3, n-4। तो हर एक को अगर हम लोग सीरीज में लेंगे तो n इंटू n+1/2 आएगा, उसको हम लोग लिख सकते हैं बिग ऑफ n स्क्वायर। और जो स्वाइप होगा, स्वाइप बिग ऑफ 1, क्योंकि इसको स्वाइप करने का जरूरत नहीं है, ये तो एक ऑर्डर में ही है, इसलिए यहाँ पर स्वाइप आ जाएगा बिग ऑफ 1। ओके, एंड इन द सेम सिनेरियो इन ओट्स, देखो यहाँ पर क्यू ये आ रहा है क्योंकि देखो यहाँ पर ये तो असेंडिंग ऑर्डर में है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हर एक पार्ट में हम लोग यहाँ पर सर्चिंग करेंगे और कंपैरिजन करेंगे। तो हर एक बॉक्स पे हम लोग को जाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हर एक प्लेस में वो बेस्ट केस है और ओट्स केस होगा और एवरेज केस होगा, जो भी केस होगा हर एक पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, उसको सर्चिंग हम लोग करेंगे। इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम आ जाएगा, लेकिन जो स्वाइप होगा, स्वाइप में ये चेंज आ जाएगा। क्योंकि देखो अगर बेस्ट केस हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो बेस्ट केस में क्या है, बेस्ट केस में स्वाइप तो यहाँ पर जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ स्वाइप बिकॉज this number is already in ascending order or in the sorted position, so there is no needs of swiping. And in the oats case there is 60, 50, 40, 30 and 20. In when we start the 60 position, we swipe sorry, we compromise each number, and here 20 is the 10 is the smallest number and 60 is, and then we swipe. Okay, so यहाँ पर भी कंपैरिजन करना पड़ रहा है, और यहाँ पर भी हम लोग we compare the whole element one by one, and in the oats case we apply the same process, and we starting the sorted process of array, we comparison 60 in the others every number, and we get n-1 by 1, n-1 is first number and n-2 second, n-3, इस तरीके से हर एक नंबर से हम लोग कंपैरिजन करेंगे और बिग ऑफ n स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एक सिलेक्शन प्रोसेस है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में मेन जो काम है, देखो एग्जाम में जो आएगा वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ये लिखना पड़ेगा, अगर उसमें बोला समझो जे अगर क्वेश्चन ऐसा है जो बेस्ट केस में सॉरी सिलेक्शन शॉर्ट में बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी एंड ओट्स केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, और वो एक शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर का और 3 या 4 नंबर का अगर आ गया, 3 या 4 नंबर का, तो उसमें क्या करोगे, इस तरीके से लिख दोगे। अगर क्वेश्चन बोला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलना पड़े तो एक एग्जांपल देके निकलना होगा। वो जो मैं 10, 20, 30 का मैंने दे दिया वो देना पड़ेगा, और सिंपल वे में अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछा तो इन बेस्ट केस लिखना इट्स occurs when is no sorting required, the array is already sorted, and the best case time complexity of selection sort is big of n square, and the average case complexity, and it occurs when the array is or element
are in jumbled order and there is not properly ascending and not properly descending, the average case time complexity of selection sort is big of n square. And the worst case complexity में क्या होगा? It occurs when the array elements are required to be sorted in reverse order. ओके मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में है, उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा. दैट्स मीन इट्स इन रिवर्स ऑर्डर एंड दैट्स मीन सपोज यू हैव टू सॉर्टेड द एलिमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर बट इट्स एलिमेंट्स आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर. द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट इज बिग ऑफ n स्क्वायर. ओके सो ये है एक प्रोसेस. और जब उसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा तो उसमें 10, 20, 30, 40, 50, 60 करके एक एरे लेना पड़ेगा जो एरे सॉर्टेड एरे में नहीं है. और अगर बेस्ट केस होगा, बेस्ट केस में ये दिखाना पड़ेगा. अगर वर्स्ट केस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिलेक्शन सॉर्ट में पूछेगा तो उसमें ये दिखाना पड़ेगा और उसमें बोलना पड़ेगा क्योंकि n पहला जो है, पहला सर्चिंग क्या है, 10 से अगर स्टार्ट करेंगे तो सर्चिंग n-1 तक होगा. फिर क्या होगा, 10 अगर सॉर्टेड हो गया तो 20 से जब स्टार्ट करेंगे n-2, फिर n-3, n- इस तरीके से होगा. ओके तो उसमें से क्या आएगा, n into n-1/2 एंड द रिजल्ट इज बिग ऑफ n स्क्वायर. ओके सो टुडे we discuss the selection part, and in the second class, okay, in the second class we discuss the programming of selection sort. And yesterday class जो मार्च सॉर्ट का मैं प्रोग्राम बोला था वो मैं आज पूछूंगा मार्च सॉर्ट का प्रोग्राम किसने किसने किया है. ठीक है. और तुम्हारा तो शायद अब ये स्टार्ट हो जाएगा ऑफलाइन क्लास नेक्स्ट वीक से. नेक्स्ट वीक ना तो होली के बाद शायद तुम्हारा स्टार्ट होगा. ठीक है. तो तब तो कॉलेज में ही क्लास होगा, कॉलेज में ही लैब होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा. तब तो तुम लैब बुक भी यहाँ पर नया स्टार्ट करना पड़ेगा. तो आज क्या करोगे, सिलेक्शन सॉर्ट का जो प्रोग्रामिंग है मैं वो बोलूंगा, और मार्च सॉर्ट का प्रोग्रामिंग जो तुम लोग किए है वो रन हो गया या नहीं हुआ और कैसे प्रॉब्लम क्या आ रहा है वो बताना पड़ेगा. ठीक है. ठीक है, मैं यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ. ओके तो नेक्स्ट क्लास तुम्हारा होगा 350 को होगा. ठीक है. हेलो. Yes, sir. ओके चलो. Okay, sir.